are almost at the end of chapter Human Capital Formation, and this video will cover the last portion of this chapter, which is related to the second last question is educational achievements in India. First of all, you need to know that how can you measure the achievements. So there are three indicators. When I am using the word indicators, you should also remember this word. Okay? Indicator, I mean, which indicates in which direction we are moving. Alright? So there are three indicators through which you can get to know that what have we achieved. The number one, adult literacy. Adult literacy rate. Okay. Then we have the second, primary completion. Primary completion rate. And the last one is youth literacy rate. Okay, so these three. Now this question, how will this question come in the paper? One way, directly they will ask you, mention the indicators through which you can get to know about the achievements of education in India. Two, second way is the direct. Discuss the educational achievements in India. Now you have to remember, whenever they say discuss educational achievements, so the first thing which should come in your mind is, how will I check the achievement? It's something like, you tell me your achievement till now in class 12. How will you get to know? I was spending 1 hour on study, now I am spending 2 hours on study. Will you get to know that how much you achieved? I don't think so. It's the quantitative term which will help you to know what you have achieved. यानी जो last test series हुई उसके marks उठा लीजिए and you make the analysis and you will get to know how much you achieved. What was your target? If your target was to achieve 70% in that test series, it was the first test series. So if you've achieved close to 65, so you can get to know that you are a little far from your target. But if your target was 70% and you missed most of the tests and you scored 40 to 50%, you're very far from that. If your target was 70% and you copied and you achieved that, sorry, then you need to get your mental checkup done, because class 12 students, if they cheat and give the test, so they must go for that. Alright? So let's begin with this. Number one, indicator. Number one indicator is adult literacy. नाम से क्या पता चला? Adult का literate होना. पहली बात, आपको literacy और education में फर्क पता है? Literacy means literate. Literate तो वो भी होता है जिससे बेसिक अक्षर आते हैं, ABCD का खा गा, अपना नाम लिखना भी जिसको आता है उसे हम literate कहते हैं. क्योंकि लिटरेसी को हिंदी में कहते हैं साक्षरता. When I say साक्षरता means स अक्षरता, अक्षरों का जिसे ज्ञान हो वो लिटरेट होता है. Who is educated? जो कि किसी एक सिस्टम के अंदर वो स्टडी करता है फॉर्मेट में और वो कोई डिग्री पाता है. That's called graduated. So graduation and education and literacy, there is a difference. Education एक set of norms के अंदर होता है, syllabus होता है. Literacy means आप किसी भी गली में किसी बच्चे को इस्लाम एरिया में जाएं, वहाँ उसे मैथ सिखाएं, 1 2 3 4 टोटल करना बताएं. ये सब अगर आपने उसको ज्ञान दे दिया तो वो लिटरेट हो गया. So we are talking about how many adults are literate. There are many people who doesn't even know how to calculate. बहुत सारे सब्जी वालाज आपके सामने आते हैं, कार्ट जो रिक्शा पुलर्स हैं, रैक पिकर्स हैं, आपके पास जो रद्दी भी लेने आता है, कभी कभी वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाता. अगर 8 रुपए किलो था, 6 किलो हुआ तो कितना हुआ आप ही बता दीजिए. तो हम अपना बताते हैं जी कैलकुलेट. They don't know how to do it. So that what does this mean? They are not literate. So they are adult but not literate क्योंकि they could not get the chance to go to school. Alright? So अब अगर ये क्वेश्चन आता है, आपने ये टेबल याद रखना है? नहीं. अगर पेपर में टेबल आता है और एनालाइज करना है तो नीचे जो लिखा है उसे आप लिखने वाले हैं. अगर नहीं आता तो you're not supposed to make the table. You're only supposed to discuss these 3 points. But how? The very first thing which you have to do is define first. Very important, which most of the students make an error here. Define. सबसे पहले आप एडल्ट लिटरेसी से समझते क्या हैं वो जरूर बताएं. Do not
not rely upon teachers knowledge. पता ही होगा टीचर को तो ये आंसर वैसे भी पता है, आपसे क्यों पूछ रहा है, तो ये मीनिंग देते हुए क्यों फील आ रहा है. So you are supposed to give the meaning first. I repeat, if you are not doing it, you lose marks. So number one, what do you mean by adult literacy? Calculate कैसे करते हैं? Rate. It refers to the ratio of literate adult population to the total population. तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया? Literate adult divided by, समझ रहे हैं? रेशो का मतलब डिवाइड होता है. टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इनटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगी. क्या मतलब? से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी टोटल पॉपुलेशन इज 10,000, इसमें से सिर्फ 1,000 पढ़े लिखे हैं. विल यू गेट टू नो हाउ मेनी पीपल आर लिटरेट? 10%, 10% लिटरेट है. तो आपको मैं पूछ सकती हूँ, बोर्ड पूछ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एडल्ट लिटरेसी? तो भैया टोटल लिटरेट में से कितने पढ़े हैं, कितने लिटरेट हैं, उन्हें देख लीजिए. सो लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इनटू 100. गॉट इट? सो इसको फॉर्मूला को अपने इसके नोट्स में लिख लें. इन केस ऑफ मेल्स, अब हम मेल फीमेल सेग्रीगेट करते हैं. मेल में 61.9% से बढ़कर 81% हो गया. सो अचीवमेंट है कि नहीं है? यस. आपके मार्क्स किसी पर्टिकुलर चैप्टर में पहले 40 में से 20 आए थे, अब 30 हो गए. है कि नहीं ग्रोथ? यस, अचीवमेंट. फीमेल केस में 37%. बताइए हमें, हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, बट इट्स अ ड्रास्टिक नंबर, ऑलमोस्ट डबल, 63%. ये सब कुछ टेबल से लिया गया है. Chances are very high that you will get a table and you will be asked to explain. Still, do not miss to define. Still, okay? चलिए, प्राइमरी कंप्लीशन. नाम से पता चल रहा है प्राइमरी स्कूल कितने बच्चों ने कंप्लीट किया. बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को स्कूल तक लाना, फिर उन्हें पढ़ाना, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, होता क्या है, उन्होंने बच्चे इसलिए इतने पैदा किए होते हैं because they believe that they are two hands, यानी they are going to work and earn money, so they don't prefer to send them to school. अब हम कहेंगे ब्राइट फ्यूचर हो गए थे, आज कमाएगा, कुछ फ्यूचर क्या, कमाना शुरू करे, बस छोटा सा होता है और उसको पर काम पे लगा देते हैं. What attracts them? Nothing. Food, वो कहते हैं जहाँ कहीं जाएगा काम करने वही खाना दे देते हैं, लोग दे भी देते हैं, so इसलिए that is also not attracting them. So what happens in the beginning was, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या किया गया, मिड डे मील को इंट्रोड्यूस किया गया. पहले तो आप मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज घर घर जाकर मोटिवेट करते थे, एजुकेशन के बारे में स्प्रेड करते थे, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. दे यूज्ड टू गो टू डोर गवर्नमेंट टीचर्स, एंड नाउ आल्सो दे गो and they used to tell them it is free of cost, you are not supposed to give anything. आप भेजें, हम आपको बैग देंगे, बुक्स देंगे, यूनिफॉर्म देंगे. बड़ा अट्रैक्टिव लगा, आए, ज्वाइन कर लिया. लेकिन 2-4-5 दिन में सारा चार्म खत्म. 1 महीने बाद फिर नहीं आ रहे. अब क्योंकि कपड़ा इतना बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं करता, बुक्स नहीं करती, बस उतना ही करती थी, कहाँ मिलेगा, मिल गया तो खत्म. फिर रखा गया, खाना भी देंगे. बताया गया मिड डे मील के अंदर हम आपके बच्चे को 1 टाइम का मील, 1 कप दूध, आयरन टेबलेट, ये सब भी देंगे ताकि आपके बच्चा मालनरिश ना रहे. अट्रैक्ट किया, आ गए स्कूल. फिर क्या हुआ, अटेंडेंस रेशियो फिर गिर गई, क्योंकि अब तो खाना भी मिल गया, लेकिन जहाँ काम करते हैं खाना तो वो भी दे देते हैं. सो व्हाई टू कम टू दिस प्लेस. फिर रखा गया, घर घर जाके बोला गया आप आए सही, हम आपको पैसे भी देंगे. सो इट मीन्स government is motivating them, guiding them time to time, running the new schemes so that they should come to school and complete their studies. So primary level पर कितनों ने complete किया? Let's understand. पहले meaning, it is the percentage of students completing the last year of primary school. तो इससे पता चल जाता है कि कौन से बच्चों ने last year primary school complete किया. मेल के केस में 78% से बढ़कर 94%, गुड नंबर. फीमेल के केस में 61% से बढ़कर 99%, क्योंकि फीमेल्स आर मोर पंक्चुअल. और ये नंबर जो है कंप्लीशन का, जब एक बार ज्वाइन कर लिया फीमेल्स जो कोई टास्क लेती हैं, ये कुछ मेरे ख्याल है बायोलॉजिकली है कि भाई दे डू इट विद फॉर फुल ज़ील के साथ काम करती हैं.
आप वैसे भी देखें, कोई आर्ट का काम दे दें या कोई हम प्रोजेक्ट हो, तो फीमेल्स को देखो पागल हुए होते हैं ऐसे, नहीं परफेक्शन, नो नो दिस डजंट लुक नाइस, चाहे उसे पूरा पेज फाड़ के दोबारा लिखना पड़े। मेल को दो यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलने देते हैं, मतलब इजी गो वाला काम होता है। सो दैट इज व्हाई। देन लास्ट कम्स इज यूथ लिटरेसी रेट। यूथ में कितने बच्चे लिटरेट हैं? अब यूथ जब हम कहते हैं तो कितनी कौन सी एज है? 15 से 24। इट इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल एजेस 15 to 24, एडल्ट से बाद वाली स्टेज। ये आपको पता होनी चाहिए यूथ पे किस कौन सी एज आती है। फिर 15 से 24 साल, who can with understanding read, who can read, write a short simple statement on their everyday life. If I ask them to write what did you do today, so they should be able to write the whole sentence. Male के केस में it is increased marginally 76% से 92, female के केस में it's a drastic change 50% से 87%. Did you understand that? Right. Now the last question, I'm sure you understood all these things. इसके बाद एक last जो important question है, जो हमेशा से हमारे यहाँ एजेंडा रहेगा, वो है एजुकेशन इन विमेन। विमेन एजुकेशन का क्या रोल है, क्या नीड है, क्यों विमेन की एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड। छोटा सा आंसर है, दो द लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 आई एम एट, राइट? Though the difference in literacy rate between male and female is narrowing down, पहले बहुत गैप था, मेल डोमिनेटिंग था, लोग नहीं भेजते थे, लेकिन अब तो नहीं रहा। अब बहुत सारे लोग, either it's poor family or average or above average, everybody they really want their girls to go to school or college or universities. There is still a need to promote women education. जरूरत क्या है? Number one, women education will further improve the economic independence and social status of women. Women का हम उसे हमेशा पहले अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट, फिर बाद में उसके इन-लॉज पर डिपेंडेंट, फिर अपने बच्चों पर डिपेंडेंट समझते रहे हैं। उसका अपना सोशल स्टेटस कभी नहीं रहा। लेकिन अब जब वो पढ़ने लगती है, जब वो आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, तो क्या होगा? उनका अपनी डिग्निटी और एक सोशल स्टेटस रहेगा। सो टू इम्प्रूव दैट, अब 50% पॉपुलेशन तो फीमेल्स है। अगर हमने उन पर काम नहीं किया तो आप जितना मर्जी ग्रो कर लीजिए, कंट्री तो ग्रो नहीं होगी, क्योंकि 50% को तो इग्नोर ही कर दिया गया। इफ नॉट 50, 30% इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। व्हेन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट अर्निंग, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इफ आई अर्न, आई एम कंट्रीब्यूटिंग नॉट ओनली टू माय ओन सोशल स्टेटस बट टू द इकोनॉमी एज वेल। अंडरस्टूड? सेकंड पॉइंट, फीमेल अगर एजुकेटेड होगी तो फर्टिलिटी रेट जो है, जो हम बर्थ देने का, वो भी क्या लिखा है? इट वुड मेक अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब होता क्या है, अगर अनपढ़ है फीमेल तो होगा क्या? बच्चे पैदा करते जा रहे हैं और नहीं इंपॉर्टेंस पता, ऐसे करने से उनकी अपनी हेल्थ भी स्पॉइल हो रही है एंड द रिस्पांसिबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस ऑन देम। So, if an educated female will be there, she will not go for more children because she knew that the health is important for them and that's the responsibility which they have to take up for the whole life, right? And during pregnancies also they will take care of themselves, which generally illiterate people doesn't do that. Third, promotion of women education would be a step towards gender equity also. Underline कर लो यहाँ gender equity। अगर हम मेल को भी स्कूल सेम भेज रहे हैं, फीमेल को भी, तो हम बता रहे हैं कि हम जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। नो मैटर वेदर माय सन और माय डॉटर इज गोइंग टू द सेम स्कूल, व्हिच मींस आई एम गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ द जेंडर्स। अंडरस्टूड? सो पहला पॉइंट क्या था? सोशल इंडिपेंडेंस, कंट्री ग्रोथ। नंबर 2, फर्टिलिटी रेट भी कंट्रोल रहेगा। नंबर 3 क्या था? जेंडर इक्विटी। सो टोटल लिटरेसी में कैंपेन चला, National Literacy Mission was launched to literate everybody in the country, no matter whether it's male or female. This program has been renamed as Sakshar Bharat. साक्षरता देनी है भारत को, with a central focus on, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस फीमेल एजुकेशन पर दिया गया। This program covers all those in the age group from 15 to above. हमने उसमें यूथ को भी कवर किया। कुछ आपके पास मैंने ये कुछ, एक तो आपको सीक्वेंस ऑफ जो है ईयर दे दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं, कलरफुल बॉक्स में है। दोज यू हैव टू गो थ्रू, ऑल्दो दे आर कवर्ड इन द होल चैप्टर।
लास्ट में नोट दिए गए हैं, दिस यू आर नॉट सपोज टू लर्न, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज प्रोग्राम्स जस्ट फॉर द अवेयरनेस। सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ, क्या करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन में डील करता है, इसका गोल क्या था, बच्चों को स्कूल लाना, रिटेंशन करना, और क्या था, जेंडर कैटेगरी का गैप जो है वो कम करना। मिड डे मील मैंने आपको बताया, खाना देते थे, स्कीम क्या थी, इसके अंदर उन्हें न्यूट्रिशन देना बच्चों को खाने के थ्रू, दूध के मिल्क के थ्रू और प्रोटीन आयरन टेबलेट के थ्रू। स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया जो कि मिस्टर मोदी ने चलाया जुलाई 15, 2015 में, और इसमें बहुत सारे लोगों को स्किल्स दिए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग करी गई फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वाज आल्सो स्टार्टेड इन 2015। इसमें क्या था, फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए काम किया गया, सो दैट टू हैव इक्वल रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, राइट। डिजिटल इंडिया में डिजिटलाइजेशन, तो आप इनके बस बेसिक गोल्स क्या थे ये आपको अवेयर होना चाहिए। This was all about this chapter, human capital formation, and that's the end of the chapter. All right.